Good morning, students. Today we are going to start our next part of hydrocarbon, that is arenes or aromatic hydrocarbon. Now the aromatic hydrocarbons are those hydrocarbons and their derivatives which contain one or more benzene ring. Either in their fused or isolated form. Are known as aromatic hydrocarbon or simply arenes. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव जो जनरली कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, देयर फ्यूज्ड फॉर्म और इन देयर आइसोलेटेड फॉर्म आर नेम्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो मोस्टली बेंजीन रिंग कंटेन करेंगे, बट स्टिल देयर आर सम examples of aromatic hydrocarbon which does not contain benzene ring but are highly unsaturated by nature, and the compound which does not contain benzene ring and the aromatic hydrocarbon which do not contain benzene ring are known as non-benzenoid compounds. For example, azulene. And the compound which contain benzene ring are known as benzenoid compound. Next is classification of arenes. Classification and nomenclature of arenes. Now, arenes are classified into a number of compounds on the basis of number of fused benzene ring. Fused benzene ring present. Okay, and their general formula is CnH2n minus 6m, where n represent the number of carbon atoms and m represent the total number of rings. Like if n is equal to 6 and m is equal to 1, that means if the compound containing only one benzene ring, simple benzene, बेंजीन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल. कि बेंजीन रिंग की जो नेमिंग है वो जनरली कॉमन नेमिंग ही हम करते हैं. इनके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर IUPAC रूल्स हम फॉलो नहीं करते. लाइक C6H6, इसका जो IUPAC कॉमन नेम इट रिमेन सेम, दैट इज बेंजीन. When CH3 group is attached with the benzene ring, then it is named as methyl benzene. CH2CH3, ethyl benzene. CH3CH3. अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज क्यूमीन. नाउ व्हेन number of rings are 2, then number of carbon atoms become 10. For this the compound is naphthalene.
and some arenes also containing 2 or more isolated benzene ring, like this, biphenyl. C6H6CH2C6H6. This is methyl biphenyl. Is it clear? Now next is structure of benzene. Now we know that the molecular formula of benzene is C6H6, ठीक है. और जो अगर हम सिंपल इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला देखें, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H14. मतलब जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन में बेंजीन में टोटल 8 हाइड्रोजन लेस है. 8 हाइड्रोजन लेस है, दैट मीन्स बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड बाय नेचर. और बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, इट इज supported by the observation that when benzene react with hydrogen, ठीक है, जब भी हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे देन इट रिएक्ट विथ 3 molecules of hydrogen and converted into its corresponding alkane C6H12 in the presence of Ren and nickel. यहाँ पे C6H12 6 हाइड्रोजन कम होंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से. ठीक है, व्हेन बेंजीन अंडरगो हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Ren and nickel at temperature 473 to 523 Kelvin, then benzene react with 3 molecules of hydrogen and converted into cyclohexane. And similarly, in the presence of sunlight, benzene react with 3 molecules of halogen and converted into corresponding hexachloride. Similarly, benzene on reaction with oxygen, ओजोन मोलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेगा then it has tendency to react with 3 molecules of ozone and converted into its corresponding ozonide. ठीक है, ये 3 molecules of ozone के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, so the compound become benzene triozonide. Temperature is 196 Kelvin. Is it clear? So these 3 observations supported that the benzene is highly unsaturated by nature. But apart from these observations, there are some observations also which support that the benzene behave like a saturated compound. Benzene behave like a saturated compound. एल्केन्स की हमने रिएक्शन की थी कि जो एल्केन्स है जनरली टेंडेंसी टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सो लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेंजीन ऑल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे तो उस केस में जो ब्रोमीन का रेड कलर है वो डिस्चार्ज नहीं होगा. रादर देन ऑन एडिशन विद बेंजीन, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, दैट इज ब्रोमोबेंजीन. एंड दिस रिएक्शन इज ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड. And the second observation which supported that benzene behave like a saturated hydrocarbon, that benzene resists to oxidation.
in the presence of oxidizing agent like KMnO4 etc. And in the presence of strong oxidizing agent like chromic acid, dichromate etc. the benzene is slowly oxidized and converted into carbon dioxide and water. ठीक है, but unlike alkene and alkynes, benzene generally do not give oxidation in the presence of oxidizing agents like potassium permanganate. इज इट क्लियर? तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हुए फर्दर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आई हमारी, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज गिवन बाय केकुले, which is known as Kekulé structure of benzene. Now, according to Kekulé structure, the 6 carbon atoms of benzene are joined together and form a ring, and they contain alternative double and single bond, and each carbon carry one hydrogen atom. This is Kekulé structure of benzene. But there are some objections to Kekulé structure. Kekulé structure में कुछ objections create हुई. Structure does not able to explain its stability towards ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 एक्सेट्रा. ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करके अगर ये हाईली अनसैचुरेटेड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में फर्दर ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा. इट डज नॉट एक्सप्लेन इट्स स्टेबिलिटी टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलरली अब जो केकुले के अकॉर्डिंग बेंजीन कंटेन ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग and the single bond length is 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, बट जब भी हम बेंजीन की एक्सरे स्टडी करते हैं all the bond lengths of benzene are equal. Remain same, and that is equal to 1.39 armstrong, that is in between the double bond length and single bond length. ठीक है, तो केकुले इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया that why all the bond lengths are remain same. It can be explained on the basis of its molecular structure. जैसे हमने एल्कीन और एल्काइन के केस में मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स की थी, अगर हम बेंजीन की मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखें, we know that the molecular formula of benzene is C6H6. ठीक है, अब सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, कार्बन की हमने पता है ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या होगी, दैट इज 1s2 2s2 2p2. और in excited state one of the paired s orbital is jumped into empty p orbital. Now look at here, in case of benzene ring, all the 6 carbon atom make a single bond with each other. ठीक है, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो 6 के 6 कार्बन एटम के बीच में बनेगा, एंड ऑल दिस कार्बन एटम अटैच्ड विद वन हाइड्रोजन एटम. C6H6 है तो ये स्ट्रक्चर तो आएगी. नाउ ईच कार्बन एटम फॉर्म्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 with adjacent 2 carbon atoms and 1 with hydrogen atom. अब 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे. That means each carbon undergo sp2 hybridization. यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए we require 3 unpaired इलेक्ट्रॉन, तो एक s और 2 p इलेक्ट्रॉन्स शो hybridization. And in sp2 hybridization 1 p orbital remain unhybridized. एक p orbital हर एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा.
अब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, ये आपस में शेयर करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब शेयरिंग में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर now the p orbital of adjacent carbon atom share their p electron with each other and form a pi bond। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये आ गई कि अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन ने आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की। अब नाउ अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम, फर्स्ट और थर्ड भी तो एडजेसेंट पोजीशन पे, ये भी आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड ने शेयर किया है तो अब जो ये फोर्थ वाला ये अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये आपस में, ठीक है। दोनों ही केसेस में ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड इन बोथ द केसेस 2p ऑर्बिटल ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम एंड फॉर्म अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, जनरली दो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बनेंगे, वन इज अबव द प्लेन एंड अनदर वन इज बिलो द प्लेन, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम तो इधर प्रेजेंट है ही है सबके साथ। Is it clear? So in this case we can say that the p orbital are not fixed to a single pi bond between the two carbon atoms, but the p orbital are involved in the formation of more than one pi bond, and we can say that the pi electrons are delocalized over the entire structure। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड पे पॉसिबल है, सो दिस इज नोन एज delocalization of electron, and these delocalized electrons are equally attracted by all the 6 carbon atoms in the benzene ring। Is it clear? These pi electrons equally attracted by all the 6 carbon atom, and that's why all the bond length in case of benzene are equal and that lie between the double bond and single bond length। So this is a molecular structure of benzene, and according to this we can say that benzene can be present in these different structures। ठीक है, जो पोजीशंस है डबल बॉन्ड की वो फिक्स नहीं होंगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग पॉसिबल है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच में भी शो कर सकते हैं, सेकंड थर्ड में भी शो कर सकते हैं, एंड वी कैन से दैट द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय ऑल द 6 कार्बन एटम। सो जो डिलोकलाइजेशन होगी, डिलोकलाइजेशन इज शोन बाय अ सर्कल, ठीक है, एंड दीज आर द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। Because of delocalization of pi electrons over the entire structure, benzene become stable। So stability of benzene can be explained on the basis of its resonating structures। Now the next important topic is aromaticity or Huckel rule। It is most important topic। Now the given unsaturated cyclic compound is aromatic or not, it is explained on the basis of Huckel rule। Huckel rule के लिए जो necessary conditions हैं, necessary conditions for a molecule to be aromatic are, first is compound should be cyclic, it contain delocalized pi electrons, molecule should be planar and should contain
4n+2 pi electrons. ठीक है, where n should be 1 2 3 4 up to infinity. Like if n is equal to 0, then the pi electron present in compound are 2 pi. ठीक है, n is equal to 1, then n 1 के लिए 6 pi, n is equal to 2, तो यहाँ पे 8 + 2 10 pi इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेनिंग 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स at least 2 electrons, 6, 10 electrons are present in the compound. अगर कंपाउंड इन कंडीशंस को फॉलो करता है, देन द कंपाउंड बिकम एरोमेटिक बाय नेचर. एरोमेटिक कब होगा? इफ इट फॉलो ऑल दिस कंडीशन. एंड इफ द कंपाउंड (4n pi electrons), then it is anti-aromatic by nature. ठीक है, अगर 3 कंडीशंस को फॉलो करता है, साइक्लिक भी है, डिलोक्युलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्लेनर भी है नेचर में, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई ना होके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0 के लिए डज नॉट कंटेन एनी पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1 4 पाई, n इज इक्वल टू 2 8 पाई. ठीक है, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, देन इट इज एंटी एरोमेटिक बाय नेचर. और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, ठीक है, ना उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ना ही 4n पाई इलेक्ट्रॉन है. सो इफ अ मोलिक्यूल डज नॉट सेटिस्फाई any one or more of the above condition, then it is नॉन एरोमेटिक बाय नेचर. ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज विच शुड बी साइक्लिक, contain delocalized pi electron, planar, and should contain 4n+2 pi electron. And anti-aromatic which contain 4n pi electron, and non-aromatic which does not satisfy any one or more of these condition. That compound is known as non-aromatic. Is it clear? अब यहाँ पे कंपाउंड प्लेनर है. प्लेनर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर सकते हैं. We know that the when compound फॉलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारी स्ट्रक्चर आएगी वो प्लेनर आएगी. नाउ इफ द कार्बन एटम शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स द कंपाउंड इज प्लेनर बाय नेचर. नाउ हियर आर सम कंपाउंड. लेट्स चेक वेदर दिस कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. सो इन द फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास एक सिंगल पाई बॉन्ड है. ठीक है, यहाँ पे अब ये कार्बन एटम्स देखिए. सबसे पहले तो साइक्लिक है. सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी साइक्लिक कंपाउंड है. सेकंड कंडीशन, अब जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंजुगेशन में प्रेजेंट है. डीलोकलाइजेशन के लिए जो कंडीशन होती है, दैट इफ द पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन, देन इट शो डीलोकलाइजेशन. थर्ड कंडीशन, प्लेनर हमें चेक करना है. अब यहाँ पे देखिए, दिस कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, दैट मीन्स sp2. यहाँ पे ये कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी. ऑल द 3 कार्बन एटम्स शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब प्लेनर भी है स्ट्रक्चर. और पाई बॉन्ड कितने हैं? एक ही पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने? एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से फॉर्म कर रहा है. तो अगर हम 4n+2 पाई रूल देखें तो इसके अकॉर्डिंग व्हेन n इज इक्वल टू 0, then the compound containing 2 pi electron, that means it follow 4n+2 pi electrons. So तो जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में all the 4 conditions are satisfied, that means this is aromatic compound. Okay. Now in second compound, अब यहाँ पे साइक्लिक है. अब यहाँ पे प्लेनर की कंडीशन देखिए. अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. बट हमारा जो सबसे अपर साइड वाला कार्बन है, ये टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है. 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में गया है. सो दिस कार्बन इज नॉन प्लेनर बाय नेचर. अब अगर एक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है तो हम ये कहेंगे कि एंटायर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है. और
नेक्स्ट अगर हम डीलोकलाइजेशन देखें तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, दैट मीन्स कंजुगेशन पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है. पाई सिग्मा पाई, 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे नहीं है. सो इट इज नॉन प्लेनर. डज नॉट शो delocalization. ठीक है, अगर एक या एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता सो इट बिकम नॉन एरोमेटिक. सो दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक बाय नेचर. अब यहाँ पे देखिए, अब जब पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में हम लोन पेयर भी काउंट करेंगे. अब यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा जो लोन पेयर है, लोन पेयर भी हम पाई के ही काउंट करेंगे. ठीक है, लोन पेयर देन सिग्मा देन पाई. अब ऑल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन. आइदर पाई इलेक्ट्रॉन आपस में कंजुगेशन में होंगे या फिर पाई और लोन पेयर कंजुगेशन में होंगे. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, अब ऑल द कार्बन एटम फॉर्म 3 बॉन्ड. ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, डेट मीन्स ऑल द कार्बन एटम शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. मतलब ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी है. और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4. लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये काउंट करेंगे. एक तरह से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम ये देखें कि इट फॉलो 4n प्लस 2 पाई रूल और नोट, तो व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन 6 पाई. व्हेन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए 8 प्लस 2 10 पाई. दैट मीन्स ये 4n प्लस 2 पाई रूल फॉलो नहीं करता. 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा. सिंपल. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर शो 4n पाई इलेक्ट्रॉन. व्हेन n इज इक्वल टू 2 देन इट कंटेनिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो द कंपाउंड विच शो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी एरोमेटिक बाय नेचर. तो ये एंटी एरोमेटिक होगा नेचर में. नाउ दिस कंपाउंड, अब यहाँ पे बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ है, डेट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. अब यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इट फॉलो 4n प्लस 2 पाई रूल. व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन इट कंटेनिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 4n प्लस 2 पाई रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है. एंटायर स्ट्रक्चर कंटेन ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक बाय नेचर. नाउ हियर इस लोन पेयर को कंटेन नहीं करते, हम सिर्फ वही लोन पेयर जनरली इंक्लूड करेंगे विच आर प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर विद द स्ट्रक्चर. ठीक है, अब लाइक इन केस ऑफ फ्यूरेन, नाउ व्हेन carbon is replaced by oxygen, now this structure is named as furane. This is pyridine. यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी 2 लोन पेयर. आउट ऑफ दिस 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन अ p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. ठीक है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर में प्रेजेंट होगा, एंड सो इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो इट प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड. So we can say that it also contain total 6 pi electron. 6 pi electron cyclic है, delocalization में है, that means this compound is also aromatic by nature. Now अब इस compound का देखिए, अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने हो गए 1 2 3. अब जो लोन पेयर है ये तो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इनको तो हम काउंट करेंगे ही. इनका हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है वेदर दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉट. तो दे कंटेन टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 10 पाई इलेक्ट्रॉन में व्हेन n इज इक्वल टू 2 देन दे फॉलो 10 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. ठीक है, तो दिस कंपाउंड फॉलो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. अब कंपाउंड साइक्लिक भी है. ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद ईच अदर, दैट मीन्स डीलोकलाइजेशन भी शो कर रहा है. सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक बाय नेचर. Is it clear? So according to Hacker rule, a compound should be aromatic if it is planar by nature, it contain delocalized pi electron and follow 4n plus 2 pi rule. Is it clear? If instead of 4n plus 2 pi rule, it follow 4n pi rule, then the compound is anti-aromatic by nature. And if the given compound does not follow any one or more
conditions, then it is non-aromatic by nature. Is it clear? I hope you understood the concept. Thank you and have a nice day.